Good morning, 12th class. So class, we were on chapter number 6 of history, Bhakti and Sufi movement, and we did talk a lot about the developments that were taking place during this time period और कैसे जो ancient या जो पुराने beliefs, religious beliefs थे उसके according क्या क्या changes आए थे. तो हमने भक्ति movements देख लिए थे साउथ इंडिया में, अलवर्स, नैनास पढ़ लिए थे, हमने वीना शेवास के बारे में पढ़ा था. उसके बाद देन हमने नॉर्दर्न इंडिया में पढ़ा था कि कैसे योगीज वगैरह डेवलप हो रहे थे. और फिर वी मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन विच इज टॉकिंग अबाउट द सूफी ट्रेडिशन, जिसमें हमने देखा था हाउ फर्स्ट ऑफ ऑल द political control change where the Turkish and then the Delhi Sultanate rulers came in India, in Indian subcontinent, और उसके बाद कैसे सूफी movement भी यहाँ पे start हो गया, which was again you can say against few of the things that were being now followed in Islam and the kind of things which one section among them thought that is not the correct way to worship Allah. तो उन्होंने उसमें क्या चेंजेस लाए थे, दैट इज व्हाट वी स्टार्टेड टू टॉक अबाउट इन सूफी. मतलब इस्लाम के क्या बिलीफ्स थे, फिर सूफी कैसे उनसे वेरिएंट थे, वो हमने देख लिया था. एंड इन आवर प्रीवियस क्लास वी वर टॉकिंग अबाउट द चिश्तीज की, हु वर द चिश्तीज, फ्रॉम वेयर डिड दे कम, हाउ डिड दे बिकम फेमस एंड द फैक्ट्स रिलेटिंग टू देम. अब हम आ जाते हैं कि जो चिश्तीज थे उनके डिवोशनलिज्म किस टाइप की थी. ठीक है, दैट इज व्हाट वी विल बी गोइंग थ्रू नाउ. Now, before moving on to that, when we were talking about the Chistis in the subcontinent, in your book there is this table that is shown where they are telling us about the important major teachers of the Chisti silsila, जहाँ पे उनका time period लिखे हुए हैं. You can just check this out. शेख मोइनुद्दीन सिद्दी जो है, उनकी डेथ 1235 में हुई थी अजमेर में. उनकी बेसिक हम बोलेंगे जो उनकी दरगाह है उसकी लोकेशन है राजस्थान में, अजमेर में. देन वी हैव ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनकी भी डेथ 1225 में हुई थी, दिल्ली में इनका दरगाह है. और शेख फरीदुद्दीन गंज शकर जो है, इनका पाकिस्तान में है जो दरगाह है. Then Sheikh Nizamuddin Aulia Delhi में है, I think all of you must have heard about it. Then Sheikh Nasiruddin Chirage दिल्ली जो है नाम से ही पता चला है दिल्ली में सिचुएटेड है. ठीक है, so this is one box that is given in our book. Now we move on to this Chishti devotionalism. One box also that is given in our book on page number 155, which is telling us about the story of Dataganj Baksh. ये जो है basically 1039 में अबुल हसन उजवीरी जो है, ये उजवीर गजनी के अराउंड अफगानिस्तान में एक एरिया, वहां पे रहने वाले थे. बट उनको फोर्स किया गया था टू क्रॉस इंडिया एंड रीच टुवर्ड्स द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, जब उस एरिया पे टर्किश आर्मी ने कंट्रोल कर लिया था. तो देन ही सेटल्ड इन लाहौर एंड ही रोट अ बुक इन पर्शियन, which was actually the meaning was unveiling of the veil and basically burqa या जो covered चीज है उसको uncover करना. तो इसमें इन्होंने explain किया था about the Sufi, their way of preaching, जो मिस्टिसिज्म थी, जिस टाइप की उनकी वो लोग वर्शिप करते थे, तसव्वुफ, उससे रिलेटेड इन्होंने इंफॉर्मेशन लिखी थी इन दिस बुक. ओके, now along with this we will see that finally he died in 1073 and then obviously he was buried in Lahore. तो जो सुल्तान महमूद ऑफ गजनी के ग्रैंडसन थे, उन्होंने वहां पे एक टूम बनाया ओवर हिज ग्रेव, एंड ये इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर पिलग्रिमेज वेयर द डिवोटीज गो स्पेशली ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी. Even today he is respected as Dataganj Baksh or giver who bestows treasures. Okay, and his mausoleum जो है is called Data Darbar or Court of the Giver. People believe that if you go to his dargah, especially on his death anniversary, then this and you ask for certain wishes, they are generally granted. इसीलिए इसको Court of Giver बोलते हैं इस जगह को, और उनको खुद को giver of bestows, मतलब the person who gives you lot of treasure, ऐसे mention. So here we see how these
Chistis were becoming very, very important, and people were considering them as the people who can grant you your wishes. Obviously, because हमने reason पढ़ा था, because they were considered that after their death they become near to God and they can easily grant you your wishes. ठीक है, अब हम आ जाते हैं on our new topic which is Chishti devotionalism, ziyarat and qawwali. अब we have already studied कि जो pilgrimage है इस सेंटर्स पे इस टाइम तक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था, जिसको हम बोलते हैं जियारत. ओके, पिलग्रिमेज क्या है? ये जो दरगाह है, ये जो टूम्स है सूफी सेंट्स के, यहाँ पे विजिट करना. तो पिलग्रिमेज दैट इज आल्सो कॉल्ड एज जियारत जो है, इट बिकेम नाउ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल अराउंड. हम बोल सकते हैं बिलीवर्स ऑफ इस्लाम एंड जो मुस्लिम वर्ल्ड है. ये जो प्रैक्टिस है इज एन ओकेजन फॉर सीकिंग सूफीज स्पिरिचुअल ग्रेस, जिसको टर्म दिया गया है बरकत. आपने बरकत आपने क्लास सुन भी रखा होगा. बरकत बोलते हैं किसी भी चीज का इंक्रीज होना या अच्छा जैसे होना, बढ़ना. तो पर यहाँ पे आप अगर देखोगे स्पिरिचुअल ग्रेस, स्पिरिचुअल ग्रेस का क्या मतलब है? एक तरीके से हम बोल सकते हैं ब्लेसिंग्स. ठीक है ना, और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जो भी आपको नॉलेज होनी चाहिए. सो अगर आप जाओगे, पिलग्रिमेज करोगे, जियारत करोगे, तो ऑब्वियसली इट विल लीड टू यू विल गेट काइंड ऑफ स्पिरिचुअल ग्रेस. एंड फॉर मोर देन अराउंड 7 centuries अलग अलग बैकग्राउंड के लोग, अलग सोशल बैकग्राउंड के, अलग क्लासेस के लोग जो है, क्रीड के जो है, दे यूज्ड टू कम हियर एंड पे देयर डिवोशन एट द दरगाह. इसमें से 5 हम देखेंगे ग्रेट चिश्ती सेंट्स जो हैं, जिनका हमने अभी अभी बात की थी इन आवर दिस प्रीवियस स्लाइड. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते थे. ठीक है, एंड इनमें से भी अगर हम देखें, ये जो अपने 5 मेंशन है, इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट हम बोलेंगे या सबसे ज्यादा जिसको रिस्पेक्ट किया जाता था, जिनकी श्राइन, वो थे ख्वाजा मोइनुद्दीन, पॉपुलरली नोन एज गरीब नवाज, कंफर्टर ऑफ पुअर. यानी बेसिकली जो पुअर के लिए बहुत समवेयर कंसर्न थे, यानी यूज्ड टू डू यू कैन से लॉट ऑफ गुड वर्क फॉर द पुअर पीपल. And this was among one of the most famous one and the most respected one, and people used to visit this area. ठीक है, कौन से? उनकी जो अजमेर, उनकी जो हम नोटिस करेंगे दरगाह है. And where is it located? It is located in Ajmer. And there is a homework for you all. You will tell me again one of the famous name by which this particular dargah is famous. I'll ask you in the next class first, and then we'll move on. Now the earliest जो हमारे पास टेक्स्ट के हिसाब से जो रिसोर्सेज हैं या रेफरेंसेस हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन के दरगाह के, वो अराउंड 14th century के अराउंड है. तो उसके ऐसा माना जाता है कि ये पॉपुलर इसीलिए हुए थे बिकॉज जो शेख है, he was considered very very pure, very very you can say a person who was filled with lot of good qualities, and obviously इसी के कारण he had lot of power, lot of grace. एक टर्म जो यहाँ पे हम बोलते हैं ऑस्टेरिटी, इसका मतलब क्या होता है? when someone is very calm and somebody is very you can say rigid in the kind of rules that they follow. तो हम बोल सकते हैं morally बहुत strict थे, ascetic थे, and somewhere इससे related ऐसे वाले terms जिसको हम simple terms में अगर बोले कि somebody who is totally devoted, okay, and somewhere morally very very आइडियलिस्टिक या स्ट्रिक्टली जो भी मॉरल वैल्यूज उनको फॉलो करनी है उस हिसाब से ये फॉलो करते थे. दैट इज व्हाई ही वाज वेरी वेल नोन फॉर हिज दीस काइंड ऑफ क्वालिटीज. ओके, सो इसीलिए दिस पर्टिकुलर चिश्ती जो है, ही बिकेम वेरी वेरी फेमस एंड ही वाज वेरी यू कैन से जो हम टर्म यूज करते हैं पायस, इसका क्या भैया? पाइटी जो यहाँ पे यूज है, बेसिकली आप व्हेन यू आर टोटली इन्वॉल्वड इन योर गॉड. ठीक है, इसीलिए ये ही बिकेम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
the greatness of his spiritual successors and patronage of royal visitors as well. तो एक तो उनकी खुद की क्वालिटी थी, उसके बाद जो उनके स्पिरिचुअल सक्सेसर्स थे वो भी बहुत सक्सेसफुल थे, they were also very famous. तो अगर किसी का स्टूडेंट, किसी का डिसाइपल अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है, फेमस हो रहा है, तो ऑब्वियसली उनके गुरु भी होंगे। तो इसीलिए वो स्पिरिचुअल सक्सेसर्स उनके ग्रेट थे, जिसके कारण उनकी और इम्पोर्टेंस बढ़ी जो पहले से थी। और इसके साथ साथ ये जो दरगाह है जहाँ पे हम बोलेंगे इनसे रिलेटेड लोग आते हैं और जियारत करते हैं, पिलग्रिमेज करते हैं, इनको रॉयल पैट्रनेज भी मिली थी। रॉयल जो रूलर्स होते थे या रॉयल पीपल जो होते थे, सो कॉल्ड एलीट क्लास जो होते हैं, हाई सोसाइटी वाले जो होते थे, सुल्तान जो होते थे, वो बहुत ज्यादा विजिट करते थे इनके दरगाह पे, जिसके कारण, और पैट्रनेज यानी कि फाइनेंशियली और हर तरीके से हेल्प करते थे, ताकि बिकॉज दे बिलीव्ड इन द ग्रेटनेस ऑफ दिस पर्टिकुलर दरगाह, तो वो आते थे, दे यूज्ड टू देमसेल्व्स विजिट, और लोग भी ऑब्वियसली उनको देख के फॉलो करते थे। तो ये जो पैट्रनेज और इनके ग्रेटनेस ऑफ इनके सक्सेसर्स एंड ही हिमसेल्फ, हिज क्वालिटीज, इसके कारण इनका जो दरगाह इट बिकेम रियली फेमस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो बेसिकली रूल्ड अराउंड, हम बोलेंगे 14th सेंचुरी, मतलब 1324 से 51 के बीच में मोहम्मद बिन तुगलक वाज रूलिंग ओवर दी parts of northern India, ठीक है। तो he was the first sultan to visit the shrine, but the earliest construction जो है इस tomb का, it was funded in the late 15th century by Sultan Ghiyasuddin Khalji, मालवा के जो थे। That means visit तो इस पे पहले भी किया था, किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, पर मेनली जो इसके कंस्ट्रक्शन को किसने फंड किया था? सुल्तान जियासुद्दीन खलजी ने, ठीक है, जो कहाँ के हैं? मालवा के हैं। Now, क्योंकि ये shrine is located on a trade route linking Delhi and Gujarat, ये कहाँ पे located है? This is you can say this shrine is basically located on the trade route linking Delhi and Gujarat. इसीलिए यहाँ से जो भी ट्रैवलर्स आते थे, ऑब्वियसली इफ एनीवन, इफ वी आल्सो गो टू सर्टेन प्लेसेस, हम वहाँ की फेमस प्लेसेस सोचते हैं विजिट करें, और अगर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी विजिटर्स आते थे वो जाते थे वहाँ पे टू जस्ट विजिट, और अगर वैसे बहुत ज्यादा डिवोटेड है तो जियारत के फॉर्म में जाते थे। तो चाहे ट्रेड के पर्सपेक्टिव से हो चाहे दूसरे पर्सपेक्टिव से हो, इट वाज गेनिंग मोर इम्पोर्टेंस। और ट्रैवलर वाला एड ऑन हो गया क्योंकि ये ट्रेड रूट था दिल्ली और गुजरात को लिंक करने वाला, इसीलिए लोग आते थे तो यहाँ विजिट करते थे। तो बाय 16th सेंचुरी हम देखेंगे ये जो श्राइन है ना, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था। इट वाज रियली पॉपुलर, विच जो श्राइन बेसिकली जिन शेख की हम बात कर रहे हैं, दैट इज ख्वाजा मोइनुद्दीन जो है, इनसे रिलेटेड जो हम पढ़ रहे हैं रिगार्डिंग हिज काइंड ऑफ डेवलपमेंट दैट वाज हैपनिंग है। तो इनके हम देखेंगे कि अब एक और चीज जो है वो एड ऑन हो रही है इसकी पॉपुलैरिटी में। इट वाज द स्पिरिटेड सिंगिंग ऑफ द पिलग्रिम्स bound for Ajmer that inspired Akbar to visit the tomb. अब इन लोगों ने, हमने पढ़ा था, ये लोग ये जो सॉन्ग्स हैं, अगर आपने एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जैसे सूफी म्यूजिक सुन रखा होगा आपने, सूफी को मतलब कैसे म्यूजिक और जो सॉन्ग्स है उसको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं while you are worshiping to your God. तो ये जो स्पिरिटेड सिंगिंग है पिलग्रिम्स की, जो भी अजमेर के साइड आते थे, इसके कारण अकबर वाज आल्सो इंस्पायर्ड एंड ही आल्सो विजिटेड दिस tomb. He went there 14 times, ठीक है, sometimes even 2 or 3 times a year to seek the blessings, ताकि नए एरिया पे कॉन्क्वेस्ट कर सके वो, फुलफिलमेंट ऑफ वॉर्स एंड बेसिकली इसके अलावा बर्थ ऑफ सन्स। People obviously, the especially अगर हम देखें मोनार्क या रूलर, they will always want son so that उनकी जो डायनेस्टी है वो कंटिन्यू होती रहे, तो उसके लिए जाते थे, नए कॉन्क्वेस्ट के लिए जाते थे, फुलफिलमेंट ऑफ वॉर्स के लिए जाते थे। मतलब आपने कोई बोल रखा है कि इफ समथिंग हैपेंस यू विल गो एंड विजिट दैट एरिया, तो इसके लिए, या पहले बोला होगा कि दे विल गो अगेन, ही विल गो अगेन, सो ही विजिटेड द प्लेस अगेन। तो अराउंड 14 टाइम्स उन्होंने विजिट किया था, जिसमें बहुत बार ऐसा हुआ था कि एक ही साथ
साल में 2-3 बार भी उन्होंने विजिट कर लिया था फॉर ऑब्वियसली ब्लेसिंग्स एंड व्हाटएवर ही विश्ड, चाहे कॉन्क्वेस्ट हो, चाहे फुलफिलमेंट ऑफ वॉर्स हो, चाहे बर्थ ऑफ सन्स. नाउ ही मेंटेन दिस ट्रेडिशन अंटिल 1580. Each of his visit was celebrated by generous gift, which was recorded in imperial documents. क्या मतलब है? Obviously, he will go. He is such a big ruler. He will never go without any kind of gift. Gift लेके आते थे always, and he used to obviously give it in the dargah, जो imperial documents में recorded है. He took these things to basically offer in dargah. To basically offer to the Chishti and whatever was the belief. For example, एक example लेते हैं 1568 में he offered a huge cauldron, देग जिसको बोलते हैं, to facilitate cooking for pilgrims. If you remember, हमने बोला था कि बहुत ज्यादा वो लोग खाना बनाते हैं for people who come to visit, स्पेशली पिलग्रिम्स जो आते हैं यहाँ पे, उनके लिए फूड बनाया जाता था. तो उसके लिए बहुत बड़ा कंटेनर जैसे इन्होंने डोनेट किया था, या हम बोल सकते हैं गिफ्ट किया था. सो दिस इज अ काइंड ऑफ, एज आई सेड, कि ये मेंशन होता था जो डॉक्यूमेंट्स है उनमें. तो इंपीरियल डॉक्यूमेंट्स में ये मेंशन्ड है कि 1568 में इन्होंने ऑफर किया था दिस ह्यूज मेटल पॉट, very big, deep, large, जिसके ऊपर which can be kept on the fire for cooking. So this was just an example. Then इसके बाद हम देखेंगे एक और example है. He also had a mosque constructed within the compound of the dargah. So yani this place is again and again gaining importance because people when go and visit this area, and if their wishes are fulfilled or if they find that yes, this is something that is really respectable, so jo kings are always in a condition to grant certain gifts and also for construction purposes. वही किसने किया था? अकबर ने किया था. ठीक है. And there are certain pictures here. You can see one of the picture is given in your book on page number 156, जिसमें दिखाया हुआ है Sheikhs greeting the Mughal Emperor Jahangir on his pilgrimage to Ajmer. And this painting is drawn by an artist known as Manohar. तो अपने पास एविडेंसेस है कि अब बेसिकली मुगल टाइम तक, तो उससे पहले भी होते थे, पर मुगल टाइम तक तो बहुत ज्यादा इन दरगाह पे विजिट किया जाता था बाय द रॉयल पीपल एज वेल. ठीक है. इसी से रिलेटेड हम देखते हैं ऑल्सो पार्ट ऑफ जियारत, अगर हम बात करें, is the use of music and dance including mystical chants performed by specially trained musician or qawwals to evoke divine, you can say somewhere जो भी उनका divine से related हम देखेंगे कि कनेक्शन है, या जिस भी पर्पस से आप जा रहे हो, पर्पस इन द सेंस देयर कैन बी मेनी थिंग्स. जनरली तो लोग जाते हैं टू आस्क फॉर समथिंग या कुछ ब्लेसिंग्स के लिए. ठीक है. और यहाँ पे हम देखते हैं कुछ लोग ओनली दे विजिट फॉर समवेयर बीइंग टोटली डिवोटेड टू गॉड. तो whatever was your main aim, अगर हम इसकी बात कर ले, जो हम एसटीसी की बात करते हैं, this is somewhere talking about kind of divine happiness जो हमें मिलती है. ठीक है. और इससे रिलेटेड यहाँ पे हमें इम्पोर्टेंस ये समझनी है कि म्यूजिक और डांस को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी व्हेन वी टॉक अबाउट जियारत. सो समवेयर मिस्टिकल चैंट्स होते थे, सर्टेन यू कैन से कुछ तरीके होते थे वेयर you will have to chant certain you can say, जैसे वेदास में हिम्स जैसे लिखे हुए थे, इनके कुछ सर्टेन फ्रेजेस एंड लिखे हुए थे दैट यू नीड टू चैंट. स्पेशली पर ये कौन? ट्रेन म्यूजिशियन या कवाल्स. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट कवाली. तो जो उस टाइप के स्पेशल सिंगर्स थे, जो जिनको वो गाने का प्रॉपर तरीका आता था, उनको बोलते थे कवाल्स. और ये इसीलिए किया जाता था टू इवोक डिवाइन एस्टेसी, मतलब टोटल हैप्पीनेस, गेटिंग टोटली इन्वॉल्व इन योर गॉड. सूफीज जो है दे रिमेम्बर गॉड ईदर बाय रिसाइटिंग जिक्र, यानी जो डिवाइन नेम्स है उनको आप चैंट करोगे, उनको रिसाइट करोगे, और इवोकिंग हिज प्रेजेंस थ्रू सॉन्ग.
यानी लिटरली ऑडिशन, और परफॉर्मेंस ऑफ मिस्टिकल म्यूजिक, यानी आप क्या कर रहे हो, यू आर टोटली अगेन क्लास, आई जस्ट टेल यू फ्यू थिंग्स, इफ यू if you have seen, there are certain वे जो म्यूजिक में अलग अलग हम बोलेंगे तरीके होते हैं, अलग अलग वर्जन जो होते हैं, उसमें बोलते हैं सूफी म्यूजिक होता है, एक सूफी डांस भी होता है। तो अगर आप उसको सुनोगे तो यू विल सी देयर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ the people totally get involved in that song, and you can say कि एकदम somewhere you are totally lost, ऐसे लगता है you are lost from the outer world and you are totally involved in it। तो वो बोल रहे हैं या तो आप डिवाइन नेम्स को रिपीट करो, रिसाइट करो, या फिर आप टोटली उसमें एंग्रॉस हो जाओ, ठीक है। एंड उसके अकॉर्डिंग जो मिस्टिकल म्यूजिक परफॉर्म होता है उसमें आप डिवोटेड हो जाओ। सामा जो है it was very very important to the चिश्तीज, and somewhere हम बोलेंगे एक तरीके का हम बोलेंगे this can be supposed and considered as the interaction with the indigenous devotional traditions, यानी जो लोकल डिवोशनल ट्रेडिशंस थे, जिसमें अगेन हम नोटिस करते हैं कि बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, ये सॉन्ग, म्यूजिक, ये सारी चीजें जो है इसी टाइप का यहाँ पे भी क्या होता था, बेसिक टाइप का इन्वॉल्वमेंट होता था। तो एक तरीके का एग्जाम्पल है ये हमारे लिए कि इंटरेक्शन बिटवीन द इंडिजिनस डिवोशनल ट्रेडिशंस, दिस वाज द चेंज दैट वाज बीइंग विटनेस्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। और इसी में हम देखते हैं कि कैसे जो हम सूफी सॉन्ग्स, सूफी म्यूजिक की बात करते हैं, हम सूफी डांस, इवन यू मस्ट have noticed somewhere, if you have not noticed, if sometime you come across certain kind of these kind of music and dance where people are performing, those who are believing in Sufi ideology, आप देखोगे वो totally they are generally pointing one hands towards the sky and one that is basically you can say aiming towards the earth, नीचे की तरफ। तो एक का डायरेक्शन जो है नीचे की तरफ होता है, द अदर वन इज फेसिंग द स्काई, जनरली ऐसा होता है। और भी और स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, आई एम नॉट टू मच, आई कैन नॉट टेल यू टू मच ऑफ द स्टेप्स, बट जनरली और एंड दे आर टोटली डिवोटेड टू गॉड। तो वो होता है उनका डांस, इसी टाइप का म्यूजिक भी होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हम एक एग्जांपल मान सकते हैं एज ए इंटरेक्शन विद द डिवोशनल ट्रेडिशन जो है, ठीक है। Now before moving on to the next topic, we'll just go with the box that is being given to us on your page number 157, और ये हम देख लेते हैं and then we'll move on to the next topic in our next class। अब एक बॉक्स आपका दिया है lamp of the entire land। Now what are they saying? Each Sufi shrine was associated with one specific feature, मतलब जनरली तो फॉलो होती थी पर एक ना एक डिस्टिंक्ट फीचर जरूर होता था। तो 18th सेंचुरी के अराउंड हम देखेंगे वन ऑफ द विजिटर फ्रॉम डेक्कन दरगाह कुली खान रोट अबाउट द श्राइन ऑफ नसीरुद्दीन चिराग ए दिल्ली, ठीक है, इन हिज मुरक्का ए दिल्ली, जो एल्बम ऑफ दिल्ली करके उन्होंने लिखा था। इसमें क्या लिखा था, द शेक इन द ग्रेव इज नॉट द लैम्प ऑफ दिल्ली। ये दिल्ली में सिचुएटेड है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ दिल्ली के लिए ही इनकी जो एनलाइटनमेंट है या इनकी जो भी नॉलेज है वो वहीं तक स्प्रेड नहीं है, लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पे संडे को विजिट करते। इन द मंथ ऑफ दिवाली द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली जो है वो विजिट करती है, यहाँ पे टेंट में रहती है, अराउंड द स्प्रिंग टैंक फॉर फ्यू डेज, वो बाथ लेते हैं यहाँ पे, जिसके कारण डिजीजेस क्योर हो जाती हैं। मुस्लिम्स, हिंदूज विजिट करते हैं इस एरिया पे, from morning till evening people come and also make themselves busy in merry making in the shades of tree, मतलब बैठते हैं वहाँ पे ट्री के अराउंड, people chat, people just come there to visit this particular area, और it is important not only for Delhi but many other areas because people come from far away। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कैसे इंपॉर्टेंस बढ़ रही है दरगाह की। और ये वाला इन्होंने एग्जाम्पल कहाँ का दिया है, जो यहाँ पे नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली में जो दरगाह है दिल्ली में, ठीक है। Coming on to the next box that is again given on this page number 157, the following is basically you can say जहान आरा की बायोग्राफी है।
of Sheikh Moinuddin Chishti, and title दिया है इसका the basically Muniz Al Arba, confident of spirits. After praising the one God, the lowly fakira, fakira matlab humble son, went from the capital Agra in the company of my great father. यहाँ पे शाहजहां की बात करें क्योंकि emperor है इसलिए. And then towards the pure region of incomparable Ajmer. Ajmer को pure region माना है, ठीक है. I was committed to this idea that every day in every station I would perform 2 cycles of optional prayer जो है वो he will be doing it. For several days I did not sleep on the leopard skin at night. I did not extend my feet in the directions of the blessed sanctuary for the respected saving master. I did not turn my back towards him. I passed the days beneath the trees. And on Thursday, the 4th of the blessed month of Ramzan, I attained the happiness of pilgrimage to this perfumed and illuminated tomb. With an hour of daylight remaining, I went to this holy place and rubbed my pale face with the dust of the threshold. From the doorway to the blessed tomb, I went barefoot kissing the ground. Having entered the dome, I went around the light-filled tomb of my master 7 times. Finally, with my own hand, I put the finest quality of ittar, that is perfume, on the perfume tomb of the revered one, and having taken off the rose scarf that I had on my head, I placed it on the top of the blessed tomb. मतलब क्या बताया, पूरा प्रोसीजर बताया कि कैसे अजमेर की टूम जिसको बहुत प्योर माना जाता है उस पे वो विजिट करना चाहते हैं, कैसे ही वेंट फ्रॉम द कैपिटल इन आगरा टिल अजमेर. उसके बाद what did he do, kind of prayer did he do? He did not sleep on the leopard skin, and he was doing all the things that were required. He passed his few days beneath the trees, and finally on Thursday he got the opportunity, and he was, as he was saying, he was very happy that he could visit this. And then he is telling the whole procedure, that how did he go inside. He went barefoot, he touched the threshold, the dust there, and finally he was happy. He offered itra there, and then he offered the rose scarf on the blessed tomb, that was basically the one that he has on his head. तो इससे basically सारे हमें important बता रहे हैं कि कितनी special place है, कि they are considering it कि यहाँ पे visit करना is such a you can say kind of blessings, that they have finally reached this place and they have been able to visit this place. तो these boxes are just telling us, and somewhere हमें important जो हम पढ़ रहे हैं उसको बता रहे हैं कि कैसे इंपॉर्टेंट हो गया था, लोग विजिट कर रहे थे और इनको मेंशन कर रहे थे. सो बिकॉज दे वर मेंशनिंग दिस क्लियरली टेल्स अस कि हाँ दिस वाज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए इट इज बीइंग मेंशन, एंड इट इज बीइंग मेंशन विद सो मच ऑफ you can say greater details, and telling you can say सारी जितनी भी important procedures हैं, and the kind of respect that they have for that particular place. So ऐसे this was becoming very very important, and so we have understood about the ziyarat, the qawwali, the kind of importance that these dargahs gain. Okay, next we will move on to the languages and the communication. कैसे कम्युनिकेट करते थे, अपना जो वेज, जो भी इनकी आइडियोलॉजीज होती थी, एंड देन वी विल डू सूफी एंड द स्टेट इन आवर नेक्स्ट क्लास. ओके, सो आई सपोज आज जितना हमने किया है must be clear to you all people. If you have any doubt relating to whatever we have done, do come back with your doubts. We'll just discuss and solve all the doubts. Okay, so now meet you all in the next class.